Good morning, all of you. So today we will be dealing with the module tool, that is classification of living organisms. We have already dealt about the basis of classification and what is classification, what is the need of classification. We have dealt about the 5 kingdom classifications. Now in today's class we'll deal with the detailed classification of different groups like fungi, plantae and animalia. And about bacteria and protista we have already dealt in the last class. So let us start. So starting with the fungi, let us first understand the structure of fungi. So what is the structure? So a fungal structure, it basically comprises of mycelium. You can see here the mycelium. This is a root like structure, and it is attached with the hyphae, and it is a sac like structure which bears the spores. So that is called the spore producing structure. This is the reproductive structure. You can see here in this diagram, this is the structure of a basidiomyces or a sac structure fungus. There are different types of this reproductive structures. It can be of a sporangium type, just like a spore. So in the fungal structure, we can see here there are two types of this hyphae. One is a aseptate and another is a septate. So what is the difference between both of them? In aseptate there is no partition or boundary between two cells, and it is a sinusotic structure. That means all the nucleus they are arranged together, and in septate they are demarcated by a cell wall. So different cells are arranged there. You can see here different nuclei, cytoplasm, and this is the hyphae, and this is the septa. That is the two. There is a membrane between two cells, and in aseptate there is no membrane lying between them. Now, classification of kingdom fungi. So basically the fungal phyla, they are classified into different categories like chytrids, zygomyces, glomeromyces, ascomyces and basidiomyces. Chytrids are mycota. These are saprobic or parasitic fungi. These are found in fresh water and terrestrial habitats. ये जो काइट्रिड्स हैं ये जो सेप्रोफिटिक इन नेचर है, मतलब डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर्स पर ये अपना भोजन लेते हैं, और पैरासिटिक इन नेचर है, मतलब दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म पर ये सरवाइव करते हैं, उनके होस्ट उनके न्यूट्रिशन से ये अपने आप को सरवाइव करते हैं. ये ज़्यादा करके फ्रेश वाटर में या स्थल पर पाए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज जाइगोमाइसिस. Zygomyces such as black bread mold are named for their sexually produced zygosporangia, which are heterokaryotic structures capable of persisting through unfavorable conditions. Zygomyces जो हैं ये ब्लैक ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड पे काला फफूंदी वगैरह जो आ जाता है उसे ही हम कहते हैं, वो जाइगोमाइसिस को ही बिलोंग करता है, तो उसे हम जाइगोमाइसिस ही कहते हैं. उसका नाम जाइगोमाइसिस इसलिए है क्योंकि जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो वो जो स्पोरेंजियम बनाता है, जिसमें वो स्पोर्स बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं जाइगोस्पोरेंजिया. इसीलिए इसका नाम है जाइगोमाइसिस. इस तरह का वो स्ट्रक्चर बनाता है जो कि एक हेट्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकता है. हेट्रोकैरियोटिक मतलब होता है उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस दोनों हो, और होमोकैरियोटिक मतलब होगा सिमिलर टाइप्स.
Unicellular parasites called microsporadia are now thought to be जाइगोमाइसिस। तो माइक्रोस्पोरेडिया जो है वो एक यूनिसेलुलर पैरासाइट है, उसे भी जाइगोमाइसिस में ही रखा गया है। Glomeromyces, the vast majority of plants have symbiotic relationships with glomeromyces in the form of arbuscular mycorrhiza। ज्यादा करके जो सिम्बायोटिक रिलेशंस फंगस जितने भी हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि जो दो ऑर्गेनिजम्स है वो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे की जरूरत है, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। तो ज्यादातर वो उस तरह के रिलेशनशिप वाले जो फंगस है वो इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इसी फाइला को बिलोंग करते हैं, ग्लोमेरोमाइसिस को। और इसमें एक आर्बस्कुलर माइकोरिजा होता है, जो मैंने बताया कि इसमें जो हाइफी होता है वो आर्बस्कुलर नेचर का होता है, मैं आगे इसे दिखाऊंगी भी। नेक्स्ट वन है एस्कोमाइसिस। एस्कोमाइसिस या फिर सैक फंजाई। सैक मतलब एक थैलानुमा स्ट्रक्चर होगा। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय प्रोड्यूसिंग वास्ट नंबर ऑफ स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, किस तरीके से? ये बहुत सारे स्पोर्स बनाता है जिसे हम कोनिडिया कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इन सैक्स और एस्काई। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें वो होता है स्पोर्स के फॉर्म में, जो कि सैक्स में या थैलानुमा स्ट्रक्चर में बनाया हुआ होता है, जिसे हम एस्की भी कहते हैं। और फिर वो रिलीज होकर के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। एट द एंड्स ऑफ डाइकैरियोटिक हाइफा, जो डाइकैरियोटिक हाइफी है उसके एंड पर ये एस्की फॉर्म होता है, विच आर यूजुअली कंटेन्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। और ये एस्की को जो कंटेन किया रहता है, जिसमें ये अटैच्ड होता है, उसको हम उस फ्रूटिंग बॉडी को हम कहते हैं एस्कोकार्प्स। बेसिडियोमाइसिस। बेसिडियोमाइसिस को हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। These are important decomposers of wood. The mycelia of Basidiomyces can grow for years in the heterokaryotic stage. ये जो है ये डिकम्पोजर्स कैटेगरी में ज़्यादा करके आते हैं, जो वुड वगैरह को डिकम्पोज करते हैं उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसका जो माइसीलिया होता है वो सालों तक अपने हेटेरोकैरियोटिक स्टेज में रह सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स विच प्रोड्यूस स्पोर्स ऑन क्लब शेप्ड बेसिडिया एट द एंड ऑफ डाइकैरियोटिक हाइफी। अब इसमें क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एस्कोकार्प्स होता था, इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी है उसे हम कहते हैं बेसिडियोकार्प्स, जो कि स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। और ये क्लब शेप्ड जो बेसिडिया का स्ट्रक्चर होता है वो क्लब शेप्ड का होता है, जो कि एक डाइकैरियोटिक हाइफे के एंड पे ही होता है। Now here we can see Chytridomycota. This is having a motile spores with flagella. Then Zygomycota. This is a resistant zygosporangium at sexual stage. मैंने बताया कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस में भी रहते हैं, तो ये इस तरह का स्पोरेंजियम बनाते हैं। ग्लोमेरोमाइकोटा आर्बस्कुलर माइकोरिजा, ये देखिए इस तरह का इसका माइकोरिजा होता है, इसे हम कहेंगे आर्बस्कुलर माइकोरिजा। नेक्स्ट वन इज एस्कोमाइसिस और सैक फंजाई। इसका सेक्सुअल स्पोर्स जो होता है वो इंटरनली सैक कॉल्ड एस्काई में होता है। ये जो एस्काई जैसा सैक है, ये देखिए ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इसी में इसका स्पोरेंजिया है। नेक्स्ट वन इज बेसिडोमाइकोटा और क्लब फंजाई। ये एलैबोरेट फूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प, ये इस तरह का होता है। जो मशरूम जो होता है वो हमारा इसी ग्रुप को बिलोंग करता है, ये इसका बेसिडियोकार्प है और इसी में जो है स्पोर्स अटैच होते हैं। Now this is the phylogeny of fungi. Here you can see the chytrids, zygote fungi, and that is the Zygomyces, arbuscular mycorrhiza fungi, then sac fungi, and this is the club fungi. Now coming to the next group, that is the plantae kingdom. Now the plantae kingdom can be
classified into two types, basically into cryptogams and phanerogams. Phanerogams are seed-bearing plants. That means they have seeds and their body part is differentiated into root, stem and leaves, and they have well-developed vascular system. They are differentiated reproductive system. But cryptogams, they are the primitive plants, and they do not have seeds and they have a thallus-like structure. These cryptogams can be further classified into three phylum, that is Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Thallophyta, they are commonly called algae. In this, the plant is not differentiated into root, stem and leaves. That is having a thallus-like structure, that is they are known as Thallophyta. They are mostly aquatic. Example is Spirogyra. In Bryophyta, the body is differentiated into stem, leaf-like and root-like structure. Exact रूट या लीफ जो है वो नहीं डेवलप होता है, लेकिन उसके जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ रहता है. और इसमें कंडक्शन के लिए स्पेशल टिश्यूज होते हैं, वाटर के एब्सेंट होते हैं. वाटर कंडक्शन के लिए कोई स्पेशल टिश्यूज नहीं होते हैं, जैसे कि उसमें हमारा जाइलम और फ्लोएम होता है हमारा फेनरोगेम्स में, इसमें वो नहीं होता है. ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, जैसे रिक्सिया. टेरिडोफाइट्स जो है, इनका जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड होता है रूट, स्टेम्स ऑफ लीव्स में. वैस्कुलर प्लांट्स हैव स्पेशल टिश्यूज टू कंडक्ट वाटर. इसमें वाटर को कंडक्ट करने के लिए स्पेशल टिश्यूज होते हैं. स्पोर्स जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं और इनका एम्ब्रियो जो होता है वो नेकेड होता है. इसमें इनकॉन्स्पिक्यूअस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका मार्सिलिया. और फेनोरोगेम्स को फिर फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स वो फेनोरोगेम्स हैं जिनके सीड्स नेकेड होते हैं और इसमें कोई फ्रूट नहीं बनता है. ये पेरेनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, वुडी होते हैं और इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कोन्स होता है या स्ट्रॉबिलस. जैसे कि पाइनस ट्री, पाइन का ट्री अगर आपने देखा होगा तो उसमें कोन पाया जाता है, वही उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. इसके अंदर सीड्स होते हैं और फ्रूट्स के अंदर सीड्स पाए जाते हैं. ये एनुअल भी हो सकते हैं, बाइनियल भी हो सकते हैं या पेरेनियल भी. एनुअल मतलब साल में एक बार होना, बाइनियल मतलब साल में 2 बार ग्रो करना और पेरेनियल मतलब सालों भर ग्रो करना. और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल है मस्टर्ड. अब ये एंजियोस्पर्म्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में, मोनोकोटिलेडनस और डाइकोटिलेडनस. मोनो मतलब होता है सिंगल और कोटिलेडन मतलब अगर सिंगल कोटिलेडन है, कोटिलेडन हो गया सीड का पार्ट होता है कोटिलेडन, तो उसे हम कहते हैं मोनोकोटिलेडन. इसमें वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है. डाइकोटिलेडन्स में 2 कोटिलेडन्स होते हैं, ये 2 दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, ये 2 होते हैं, इसे हम डाइकोटिलेडन्स कहते हैं. और इसमें जो वैस्कुलर बंडल होता है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होता है. ये जो मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स होते हैं उसके लीव्स का वेनेशन मतलब जो उसमें लाइनिंग होता है लीव्स का वो स्ट्रेट होता है, लेकिन डाइकोटिलेडनस में वो ब्रांच्ड होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो इस तरीके से हम प्लांट्स को लीव्स को ही देख करके उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मोनोकोटिलेडनस है या डाइकोटिलेडनस है. इवन उसके हम रूट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मोनोकोटिलेडनस का फाइब्रस रूट होगा और डाइकोटिलेडनस का टैप रूट सिस्टम होगा. नेक्स्ट है हमारा एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करते हैं हम इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स मतलब उसमें कॉर्डेटा नहीं है, यानी उसे हम नॉन कॉर्डेट्स भी कहते हैं, यानी उसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है. और वर्टिब्रेटा यानी उसमें वर्टिब्रल कॉलम या
प्रेजेंट है, उसे हम कॉर्डाटा भी कहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स को हम डिफरेंट लेवल पे क्लासिफाई करते हैं, जैसे सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल और ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सेलुलर लेवल में हमारा पहला फाइलम है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो है वो सेल लेवल का नहीं है, इसमें फर्दर ये स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हमारा निडेरिया या सेलेंट्राटा भी कहते हैं इसे, ये टिश्यू लेवल है, इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन हो चुका है। नेक्स्ट वन है हमारा फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। इससे हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एसिलोमाटा या एंड सिलोमाटा। एसिलोमाटा मतलब उसके बॉडी के अंदर कोई कैविटी नहीं है, ये मतलब होता है नो, और सिलोमाटा मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। एसिलोमाटा में मोस्टली दो फाइलम आता है, प्लैटीहेलमिन्थेस और नेमाटोड्स। और सिलोमाटा में फर्दर जो फाइलम्स आते हैं वो है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्माटा। और फिर वर्टिब्रेट्स को फर्दर क्लासिफाई करेंगे, तो वर्टिब्रेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं प्रीसेस, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मेमेलिया। और ये पाइसेस को भी फिर हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, वन इज कार्टिलेजिनस फिश एंड अनदर इज बोनी फिश। कार्टिलेजिनस फिश मतलब हो गया उसमें जो बोन्स होता है वो सॉफ्ट होते हैं, और दूसरे जो है उसमें बोनी फिश होते हैं, उसमें बोन्स होते हैं। दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग इन दिस। इसमें हमने बताया है कि प्रोटोजोआ और मेटाजोआ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है एनिमल किंगडम में। तो पहले प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पर उस जो प्रोटोजोआ हुआ वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल हुआ, मेटाजोआ हुआ वो सेलुलर या टिश्यू या ऑर्गन लेवल हुआ। तो प्रोटोजोआ के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है, इस बार हमें मेटाजोआ का करना है। तो मेटाजोआ को भी फिर हम फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मेसोजोआ, पाराजोआ एंड यूमेट्रोजोआ या एंटरोजोआ। जो सेलुलर लेवल हुआ उसे मेसोजोआ हमने कहा, पाराजोआ भी सेलुलर लेवल का ही होता है, यूमेटाजोआ या एंट्रोमेटाजोआ जो टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। तो पाराजोआ जो है वो हमारा पॉरीफेरा ग्रुप है, उसके जैसे एग्जाम्पल में है स्पॉन्ज। यूमेटाजोआ में है सिमेट्री के बेसिस पर रेडियाटा और बाइलेटेरिया। रेडियाटा मतलब होता है रेडियल सिमेट्री हो उसका, और बाइलेटेरिया मतलब उसका बाइलैटरल सिमेट्री है। रेडियाटा ग्रुप में जो है उनका डिप्लोप्लास्टिक टिश्यू लेवल है, मतलब जो टिश्यू होता है डिप्लोप्लास्टिक 2 लेयर का होगा, और बाइलेटेरिया में ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा, मतलब 3 लेयर्ड होगा। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल डेवलप होता है। रेडियाटा में हमारा 2 फाइलम आ जाता है, सेलेंट्राटा जैसे या निडेरिया, हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है, निटोफोरा ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। देन बाइलेटेरिया में हमारा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे प्रोटोस्टोमस और ड्यूटेरोस्टोमस। प्रोटोस्टोमस का है कि उसके अंदर सिलोम पाया जाता है। तो ये भी हमारे 3 कैटेगरीज में डिवाइड होंगे, ए सिलोमाटा, सीडोसिलोमाटा एंड यू सिलोमाटा। ए सिलोमाटा मतलब है कि उसके अंदर सिलोम यानी कैविटी नहीं पाया जाएगा, सीडोसिलोमाटा मतलब फॉल्स कैविटी पाया जाएगा, और यू सिलोमाटा मतलब उसके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी हीमोसील पाया जाएगा। तो ए सिलोमाटा में फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस आएंगे, सीडोसिलोमाटा मतलब नेमाथेलमिन्थेस या नेमाटोड्स, और यू सिलोमाटा में सीजोसील यानी सीजोसील होगा, जैसे एनालिड, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, जिसमें कि मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में हीमोसील होता है। हीमोसील मतलब होता है हेमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर उसमें पाए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ड्यूटेरोस्टोमस, ये डिवाइडेड है इकाइनोडर्माटा और कॉर्डाटा में। नाउ coming in detail about the non-chordata, here we can see the animal phylogeny tree. Here we can see the ancestor colonial guanoflagellate, here Porifera, Nidaria, then other bilaterals, then Echinodermata and chordata. These are Deuterostoma, Bilateria, Eumetajoa,
सो कमिंग टू द पॉरीफोरा, एग्जाम्पल मैंने बताया था स्पॉन्ज, इसे स्पॉन्जेस भी हम कह सकते हैं. सो दीज आर सिसाइल एंड हैव अ पोरस बॉडी एंड कॉनोसाइट्स. ये जो है सिसाइल मतलब एक जगह ही अटैच होता है, ये मूव नहीं करते हैं. और इनका बॉडी जो होता है वो पोरस होता है और इसके अंदर कॉनोसाइट्स जैसे सेल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बहुत सारे फंक्शंस को करते हैं. नेक्स्ट है निडेरिया या सिलेंट्राटा. इनका रेडियल सिमेट्री होता है. गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी एंड नीडोसाइट्स, एक बीच में एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है और नीडोसाइट्स स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इसके डिफरेंट फंक्शंस के लिए. मोस्ट एनिमल्स है बायलैटरल सिमेट्री. इसके बाद में मोस्टली जितने एनिमल्स हैं उनमें बायलैटरल सिमेट्री होता है, मतलब दो तरफ से वो सुपर इम्पोसिबल होते हैं. नेक्स्ट है मॉलिस्कास हैव अ मस्कुलर फुट, अ विसरल मास एंड अ मैंटल. मॉलिस्का जैसे आपने घोंगा देखा होगा तो वो हमारा मॉलिस्का किंगडम में आता है. तो उसका फुट जो होता है वो मस्कुलर होता है, विसरल मास होता है और एक मैंटल होता है. उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, हार्ड कवर होता है जिसे हम मैंटल कहते हैं. एनालिड्स आर सेगमेंटेड वर्म्स. एनालिड जो है उस वो बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है. नेमाटोड्स जो होता है वो नॉन सेगमेंटेड होता है. सीडोसिलोमेट्स कवर्ड बाय अ टफ क्यूटिकल. उसमें सीडोसिलोमेट्स होता है मतलब फॉल्स बॉडी कैविटी होता है और उसके बाहर बहुत ही हार्ड क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है. आर्थ्रोपोड्स जो आर सेगमेंटेड सिलोमेट्स दैट हैव एन एक्सोस्केलेटन एंड जॉइंटेड अपेंडेजेस. आर्थ्रोपोड्स जो है वो सेगमेंटेड सिलोमेट्स है, वो उसमें ट्रू बॉडी कैविटी पाया जाता है, सिलोम पाया जाता है, बट वो क्या है सेगमेंटेड होते हैं और इसके ऊपर एक एक्सोस्केलेटन होता है, एक बाहरी स्केलेटल कवर होता है और इसके जो अपेंडेजेस है यानी जो लेग्स है वो जॉइंट होते हैं. इकानोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स आर ड्यूटेरोस्टोम्स. ये दोनों जो है ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं. Now this is again the detail about the different groups. This is about the sponges. Then they live in suspension, feeder, and this is the nidaria. These are jelly-like corals or hydras. They have a distinctive body plan. Then platyhelminthes. These are flatworms like tapeworms, planaria, flukes. जो ये होते हैं ये सब इसी ग्रुप में बिलोंग करते हैं. इनका बायलैटरल सिमेट्री होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें हो जाता है और आईज और अदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं. दे हैव नो बॉडी कैविटी और ऑर्गन्स फॉर सर्कुलेशन. कोई भी सर्कुलेशन इसमें नहीं होता है. ये एक एंथोसेफेलेंस है. ये प्रिकली होते हैं and are commonly known as thorny headed worms because of the curved hooks. जैसे हुक वर्म वगैरह जो होते हैं वो सब इस ग्रुप में. द लार्वा डेवलप इन आर्थ्रोपोड्स. ये पैरासाइट्स ही होते हैं. और ये निडेरियंस के बारे में है कि इनका दो फॉर्म पाया जाता है, एक सिसाइल पॉलिप और एक मेड्यूसा. ये दोनों इसका 2 बॉडी फॉर्म्स है और इसके अलग अलग क्लासेस है. हाइड्रोजोवंस, काइफोजोवंस, क्यूबोजोवंस, एंथोजोवंस. ये सब डिफरेंट क्लासेस है निडेरिया का. नेक्स्ट है आपका जो बायलैटरल सिमेट्री के हैं, फ्लैटवर्म्स है, रोटीफोर्स है, लोबोफोरेट्स है. ये नेक्स्ट है हमारा नेमाटोड्स. ये राउंड वर्म्स जो पाए जाते हैं सॉइल वगैरह में. ये भी पैरासिटिक इन नेचर होते हैं. इनका टफ क्यूटिकल होता है बॉडी पर. देन है आर्थ्रोपोड्स जो मोस्टली जो इंसेक्ट या क्रस्टेशियंस है, अराकेनिड्स है, आर्थ्रोपोड्स ग्रुप में बिलोंग करते हैं.
जितने भी जैसे स्कॉर्पियन वगैरह है वो सब अराकिनिड्स में आते हैं। क्रस्टेशियंस बहुत सारे हैं। फिर इंसेक्टा ग्रुप, जितने भी इंसेक्ट्स है वो सब आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप और फाइला। देन कम्स द मोलस्का, इसमें स्नेल्स है, क्लैम्स है, स्क्विड्स है, ऑक्टोपस है, ये सब मोलस्का ग्रुप में बिलोंग करते हैं। इनका सॉफ्ट बॉडी होता है बहुत सारे में, और इनके प्रोटेक्शन के लिए एक हार्ड सेल का कवरिंग पाया जाता है इसके ऊपर में। Annelida or segmented worms are distinguished from other worms by their body segmentation, जैसे अर्थवर्म ये एनेलिडा ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इसमें फ्रेश वाटर और मेलाइन दोनों तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं। This is about the detail about the mollusca. The class Polycophores is composed of a chitinous oval-shaped marine animal encased in the armor of 8 dorsal plates. ये गैस्ट्रोपोड्स हैं। इसी के ये अलग अलग क्लासेस है, गैस्ट्रोपोड्स, बाइवाल्व्स, सेफेलोपोड्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है उसके। इतने जस्ट यू कैन हैव द नेम। नेमाटोड्स जो नॉन सेगमेंटेड सीडोसिलामेट्स होते हैं, टॉप क्यूटिकल इसमें होता है। नेक्स्ट वन इज एनालिड्स। एनालिड्स मैंने बताया जैसे अर्थवर्म, ये भी दो ग्रुप में होते हैं, दो क्लास होता है इनका भी। ऑलिगोचिट्स या पॉलीचिट्स। जो ऑलिगोचिट्स होते हैं वो अर्थवर्म वगैरह होते हैं, एक्वाटिक स्पीसीज होते हैं। और पॉलीचिट्स जो होते हैं उसमें पैडल लाइक पैरापोडिया होता है, उसका जो पैर होता है वो पैडल लाइक होता है, जो कि गिल्स की तरह काम करता है और लोकोमोशन में मदद करता है। नेक्स्ट ग्रुप है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसकी बॉडी जो होगी वो सेगमेंटेड होगी और अपेंडेजेस होंगे वो जॉइंट होंगे। द आर्थ्रोपोड्स एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ प्रोटीन एंड काइटिन अंडरगोज रेगुलर एक्डाइसिस, मतलब मोल्टिंग होता है। और इसका जो बॉडी जो एक्सोस्केलेटन है वो प्रोटीन और काइटिन का बना हुआ होता है। इसके भी अलग अलग क्लासेस है, जैसे कैल्सीरिफोर फॉर्म्स, मायरियापोड्स, इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस, ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं इसके। नेक्स्ट वन इज द इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कोडाटा। तो इकाइनोडर्माटा जैसे मैंने बताया कि सी अर्चिन्स वगैरह है, सी स्टार्स है, सैंड डॉलर्स है, ये सब सारे जो है ये इकाइनोडर्माटा में आते हैं। हेमिकोडाटा जो है ये दिस इज लिंक connecting link between the chordata and non-chordata. This is partially chordate. It is neither fully chordata nor it is non-chordata. So like echinodermata, derms and chordates, hemichordates are deuterostomes. ये भी deuterostomes हैं। Share their traits with chordates such as gill slits, जैसे chordates में gill slits पाए जाते हैं, वैसे ही इसमें भी गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है और इसे हम एंटेरोपिनियोट्स भी कहते हैं या फिर एकॉर्न वॉर्म्स कहते हैं। एकॉर्न वॉर्म्स आर मैराइन एंड जनरली लिव बरीड इन मड और अंडर रॉक्स। दे मे रीच अ लेंथ ग्रेटर देन 2 मीटर। इसके कैरेक्टर्स कुछ कॉर्डाटा से मिलते हैं और कुछ नॉन कॉर्डाटा से। नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉर्डाटा। तो मोर देन 90% ऑफ जितने भी कॉर्डाटा स्पीसीज हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं। However, the phylum Chordata also includes 3 groups of invertebrates, that is tunicates, lanceolates and hagfishes. ज़्यादातर जो कॉर्डाटा 90% जो है वो हमारा वर्टिब्रेट्स है, मतलब उसमें एक वर्टिब्रल कॉलम होगा। लेकिन 3 ऐसा भी है ग्रुप्स जिसमें जो इनवर्टिब्रेट्स है लेकिन कॉर्डाटा में ही आते हैं, जो ट्यूनिकेट्स, लैंक्लेट्स एंड हैगफिश।
Echinoderms have water vascular system ending in tube feet used for locomotion and feeding. The radial anatomy of many species evolved secondarily from the bilateral symmetry of ancestors. पहले जो बायलेटरल सिमेट्री इसके एंसेस्टर्स का था उसी से फिर ये रेडियल सिमेट्री इसमें इवॉल्व हुआ है और एक थिन बम्पी और स्प्रे स्किन इसको कवर करते हैं कैल्केरियस एंडोस्केलेटन से। कॉर्डाट्स जो है 2 इनवर्टिब्रेट सबफाइला एंड ऑल वर्टिब्रेट्स। इसमें एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है जो कि इकानोडर्म से बहुत कुछ मिलता जुलता है। This is the review. You can see the description of different phyla, the basic features of different phyla. Okay. Next one is the chordata. Now this is the hypothetical phylogeny of chordates. In this, it is assumed at first the notochord was developed, then brain developed, then head, and then vertebral column, then jaws, then lungs, then lobed fins, then legs, and amniotic. In this way, first of all, when the notochord developed, then Echinodermata was formed. Then from there, Urochordata. With the development of the brain, Urochordata developed. Then Cephalochordata. Then in this way, then amphibia, reptilia, mammalia, all these things they developed. Here we can see the amniotes, tetrapods, lobefins, osteocythians, chordates, then craniates, vertebrates, gnathostomes, osteocythians, lobefins, tetrapods and amniotes. Okay. amniotes में आ गए हमारे रेप्टिलिया और मैमल्स, टेट्रापोड्स में आ गए एम्फीबिया, देन लोबफिन्स में आ गए हमारे फिशेस वगैरह है, ऑस्टियोकाइथिस, गैनाथोस्टोमास, ये सब हमारे कॉन्ड्रिकाइथिस, ये सारे फिश स्पाइसिस ग्रुप में आ जाते हैं। ये सब वर्टिब्रेट्स हैं, इन सब में क्या है वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं। और फिर एक हमारा है सेफेलोचोर्डाटा जो क्रेनिएट्स में होंगे, मतलब उसका हेड डेवलप हुआ है। Chordates have a notochord and also hollow nerve cord. इसमें एक नर्व कोड होता है हॉलो और एक नोटोकोड पाया जाता है। और पेरिफेरेंजियल स्लिट्स पाए जाते हैं या क्लेफ्ट्स बोलते हैं, और एक मस्कुलर एनल टेल पाया जाता है, मस्कुलर पोस्ट एनल टेल, जो एनस का वहाँ स्टेज प्लेस है, वहाँ पर एक टेल पाया जाता है। ट्यूनिकेट्स जो हुए वो मैराइन सस्पेंशन होते हैं, फीडर्स और कॉमनली कॉल्ड एज सी स्क्वैट्स। दे लूज सम ऑफ द डेराइव्ड कैरेक्टर्स फ्रॉम चॉर्डेट्स एज एडल्ट्स। जब एडल्ट होते हैं तो फिर वो अपने कुछ कैरेक्टर्स को वो लूज़ कर जाते हैं, इसलिए उसे ट्यूनिकेट्स कहते हैं। लैंगुलेट्स भी है, जो मैंने बताया था कि वो कॉर्डेट्स है, लेकिन इसमें वर्टिब्रल कॉलम इन सब में नहीं होते हैं, ये भी सस्पेंशन फीडर्स होते हैं। फिर अर्ली कॉर्डेट एवोल्यूशन जो है, द करंट लाइफ हिस्ट्री ऑफ ट्यूनिकेट्स प्रोबेबली डज नॉट रिफ्लेक्ट दैट द एंसेस्ट्रल कॉर्डेट्स जीन एक्सप्रेशन इन holds clues to the evolution of the vertebrate brain. इसी तरीके से क्रेनिएट्स है, वो क्रेनिएट्स को हम वो कॉर्डेट्स कहेंगे जिनके पास में हेड होता है, क्रेनियम मतलब हेड ही होता है, और इंक्लूडिंग ए स्कल एंड अ ब्रेन, आइज,
ये सब उसमें डेवलप हो जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं। तो इसमें हैग फिश वगैरह है, हैग फिश है जॉलिस मेराइन फिश, ये कार्टिलेजिनस होता है। फिर वर्टिब्रेट्स आर क्रेनियट्स दैट हैव अ बैकबोन। वर्टिब्रेट्स जो है वो क्रेनियट्स है, मतलब उसमें हेड तो होगा, स्कल तो होगा, बट उसमें एक बैकबोन भी पाया जाता है। एक एलेबरेटेड स्कल होगा और एक्वेटिक फॉर्म में होगा, फिन रे होगा। तो लैम्प्रेज जो है वो जॉलेस वर्टिब्रेट है जो कार्टिलेजिनस सेगमेंट होता है, और नोटोकॉर्ड होगा और आर्चिंग derived characters of vertebrates. Gnathostomes are vertebrates that have jaws, और गैनाथोस्टोम्स उनको कहेंगे वैसे वर्टिब्रेट्स को जिसके पास जॉ होते हैं। और they evolve from skeletal support of the pharyngeal slits, और enhanced sensory systems होते हैं including the lateral line system. कॉन्ड्रेकाइथिस ये शार्क्स वगैरह जो है ये इस ग्रुप को आते हैं। दे हैव अ कार्टिलेजिनस स्केलेटन एंड इवॉल्व सेकेंडरली फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल skeleton, mineralized skeleton. Tetrapods are gnathostomes that have limbs and feet. ऐसे gnathostomes जिनके पास limbs या फिट्स होते हैं। तो जैसे एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस का लिम्स वगैरह होता है, सैलमेंडर, फ्रॉग, ये सब हमारे इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। देन एम्यूनोड्स आर टेट्रापोड्स दैट हैव अ टेरेस्ट्रियली एडेप्टेड एग। और एम्यूनेट्स उन्हें कहेंगे जो कि ज़मीन पर, स्थल पर जिनके अंडे रह सकते हैं, उस तरीके से वो इवॉल्व हो चुके हैं। तो वो सब हमारे एम्यूनेट्स ग्रुप में आ जाते हैं। तो इसमें भी है कुछ अर्ली एम्यूनेट्स है, देन रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सब एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स है, और ये सब हमारा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। तो ये सब सारे हमारे इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। फिर नेक्स्ट वन है हमारा मैमल्स। मैमल्स आर एम्यूनेट्स दैट हैव हेयर एंड प्रोड्यूस मिल्क। तो जो मैमरी ग्लैंड जिसमें है जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। इनके पास में हेयर्स होते हैं। तो इन्हें भी हम मोनोट्रीम्स, मार्सुपियल्स, यूथेरियंस जैसे प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं। नेक्स्ट हमारा ह्यूमंस आर बाइपोडल होमिनिड्स विथ अ लार्ज ब्रेन, और इसे भी हम अर्ली होमिनिड्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसे भी फर्दर ग्रुप किया जाता है। इसके बेसिक फीचर्स है बाइपेडलिज्म, मतलब ये दो लेग से मूव करते हैं, टूल यूज कर सकते हैं। अर्ली जो होमोसेपियंस थे वो निएंडरथल्स थे, उन्हीं से इवॉल्व होकर के हम होमोसेपियंस सेपियंस इवॉल्व हुए हैं। So that's all in the classification of the animal. So now we have we have covered the different kingdoms, and now in the last lecture we will deal in the next coming lecture we will deal with the some few other basis of classification like mode of nutrition and excretion, and some of the experimental organisms or model organisms in different kingdoms. So for more details on animal kingdom, the link is there, PDF file is attached over here. You can go through that, and you can you can get all the short notes or the key points about the different phylum. So that's all for today. Thank you very much.